بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9th کلاس، جیسا کہ آپ کے ایگزامس جو ہیں وہ بہت زیادہ قریب ہیں اور ایگزامس کی تیاری جو ہے وہ یقیناً زوروں پر جا رہی ہوگی، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، جنہوں نے پری 9 جو ہے وہ پراپر نہیں پڑھی ہوئی، تو ایسے میں جو ہے ہماری چینل کی جو ویڈیوز ہیں وہ ان کے لیے بہت کام آئیں گی۔ تو اسی طرح آپ کا جو پیپر ہے وہ 40% جو ہے وہ گرامر پر مشتمل ہے، تو گرامر کے کچھ کویسچن جو ہیں وہ کنسیپچول بھی آنے ہیں آپ کو، اور فرسٹ ٹائم کیونکہ نیو بک کا پیپر ہے تو نیو بک کے مطابق آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی۔ تو آج ہم لوگوں نے کچھ ضرب الامثال کرنی ہے۔ یہ ضرب الامثال آپ کی بورڈ کی دی گئی بک میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ اکثر بورڈ کے ایگزامز میں جو ہیں وہ آتی ہیں، کیونکہ یہ کویسچن پرانا ہی ہے، پہلے بھی یہ کویسچن آتا تھا، اب بھی آ رہا ہے۔ 5 نمبر کا یہ کویسچن ہے جس میں آپ کو ضرب الامثال یا غلط الفاظ کی درستی کرنی ہوتی ہے۔ تو اب آپ لوگ جو ہیں ہم وہ والی ضرب الامثال آپ کو کروائیں گے جو آپ کو بورڈ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کی بک میں موجود نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کا 30% پیپر جو ہے وہ کنسیپچول دیں گے۔ اس وجہ سے 30% یا 20% پیپر کنسیپچول آتا ہے، تو کنسیپچول پیپر میں آپ کو جو ضرب الامثال بورڈ کے مطابق بہت زیادہ آنے کی توقعات ہوتی ہیں، انہی ضرب الامثال کو آج ہم دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان میں کون کون سی مسٹیکس ہیں جو آپ کامنلی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا ہے ضرب الامثال کی درستی بورڈ کے نصاب کے مطابق اہم ضرب الامثال۔ اب یہاں پہلی ضرب المثل ہے جو بلیک مارکر سے ضرب المثل لکھی گئی ہے وہ غلط ہے، اور جو بلو مارکر سے لکھی گئی ہے وہ صحیح ہے۔ پہلی ضرب المثل ہے اپنا الو سیدھا کرنا، تو اپنا الو سیدھا کرنا یہ ضرب المثل جو ہے یہ آپ کی غلط ہے۔ اپنا الو سیدھا کرنا، اب آپ نے اس میں غلطی نظر آ گئی، سیدھا لفظ بچے اکثر اس طرح سے لکھتے ہیں جبکہ 2 آنکھوں والی ہے کے ساتھ لفظ جو ہے وہ سیدھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنا مقصد دیکھتا ہے، اپنا مطلب اپنے مطلب سے اس کو غرض ہے، اپنے کام سے غرض ہے، دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف اپنا الو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یہ اکثر محاورہ آپ سنتے ہیں، یہ 5 نہیں ہے، پانچوں لفظ ہے، اور پانچوں میں بھی اکثر بچے نون گنا نہیں ڈالتے، تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ وہاں پہ بولا جاتا ہے جہاں پہ کسی ایک غلط یا ایک بری حرکتوں والے بہن بھائی کی وجہ سے باقیوں کو بھی سننی پڑتی ہیں، تو وہاں پر یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ سب بہن بھائی برابر نہیں ہوتے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تو پانچوں کا لفظ آپ یہاں پر دھیان سے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طرح اگلی ضرب المثل ہے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اب اس میں مین غلطی جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ ہے لفظ لکھ دیا ہے، آپ ضرب المثل میں ایک نقطے کی بھی غلطی ہوگی تو آپ کی غلطی جو ہے وہ غلطی ہی کنسیڈر ہوگی، تو یہ آپ کی ضرب المثل غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اب اس میں کیا غلط ہے؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، بس اتنی ضرب المثل ہے لفظ جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4 دن جو پیسے آتے ہیں 4 دن موجیں کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ادھاروں پر جو ہے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بس ان کی زندگی تو 4 دن کی چاندنی تھی اور پھر اب اندھیری راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلی ضرب المثل ہے، یہ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اکثر پیپرز میں آتی تھی، حلوائی کی دکان پر مٹھائی۔ یہ اب غلط ضرب المثل ہے کیونکہ زیادہ تر ہاف ضرب المثل آتی ہے حلوائی کی دکان۔ حلوائی کی دکان جب آتی ہے تو جب بچے دیکھتے ہیں کہ یہ حلوائی کا ذکر ہے تو پھر بچے اسی طرح لکھتے ہیں پر مٹھائی کے، یقیناً یہاں مٹھائی ہی ہوگی، جبکہ یہ کیا ہے ضرب المثل؟ حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ۔ جی، اب یہاں پر دکان لفظ جو ہے اس میں غلطی ہے، آپ یہاں پر 2 کان لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی پوری ضرب المثل ہی ہے حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ، تو یہ ضرب المثل اسی طریقہ سے جو ہے یہ بولی جاتی ہے اور آپ لوگ اکثر اس کو جو ہے یہ غلط لکھتے ہیں۔ اسی طرح اگلی ضرب المثل ہے دریا کو کوزے میں بند کرنا، مثلاً کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے اس کو آپ مختصر کر کے بیان کر دیں
तो उसको कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करना। अब कूजे लफ्ज जो है ये जे के साथ है, यहाँ पे बच्चे अक्सर जाल के साथ लिख देते हैं जिसकी वजह से ये लफ्ज गलत हो जाता है। तो वो ज़रबुल मिसल गलत है और ये ज़रबुल मिसल ठीक है। उसके बाद अगली ज़रबुल मिसल है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब लेकिन यहाँ पर जब दूध का जला छाछ, छाछ कहते हैं लस्सी को, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन यहाँ बच्चे अक्सर फूंक एक ही दफा लिखते हैं। अब इस ज़रबुल मिसल का मतलब ये है कि जो इंसान जो है वो किसी भी चीज का उसने कोई नुकसान उठाया हुआ है, तो वो अगर लस्सी भी पिएगा तो उसको भी देख देख कर पिएगा कि मैं कहीं गलत चीज तो नहीं पी रहा, कोई मुझे जहर डाल कर तो नहीं दे रहा या कोई और चीज। इसी तरह अब ये ज़रबुल मिसल किस तरह आएगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। फूंक फूंक लफ्ज दो दफा आएगा और दो आंखों वाली हे के साथ आएगा, और छाछ का मतलब होता है लस्सी। इसी तरह से अगली ज़रबुल मिसल है, 7 नंबर पे है आपकी ज़रबुल मिसल, दूर के ढोल सुहाने। दूर से चीजें आपको अच्छी लगती, दूर के ढोल, जब यहाँ इतनी आती है ज़रबुल मिसल दूर के ढोल, तो अक्सर बच्चे यही लिखते हैं दूर के ढोल बजते हैं। दूर के ढोल तो बजते ही हैं, लेकिन यहाँ ज़रबुल मिसल क्या है, दूर के ढोल सुहाने। इस ज़रबुल मिसल का मतलब है कि दूर से चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जब तक आपको उन चीजों के पास नहीं जाते। या कुछ इंसान दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको उनके करीब रहने का मौका मिले तो आपको अंदाजा होता है कि ये इतने भी अच्छे इंसान नहीं थे, आपके जहन में एक खाका बना हुआ था। तो दूर के ढोल सुहाने वहां बोला जाता है। उसके बाद अगली ज़रबुल मिसल है, 1.5 ईंट की मस्जिद। 1.5 ईंट की मस्जिद जो है ये एक ज़रबुल मिसल है, और ये आपकी ये वाली ज़रबुल मिसल ठीक है। इसी तरह ये ज़रबुल मिसल आपकी गलत है। ये ज़रबुल मिसल है, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना। तो बनाना लफ्ज आप नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना वहां पर बोला जाता है जब लोग जो हैं सारे, मैक्सिमम लोग जो हैं एक तरफ हों और दो लोग एक तरफ हों कि नहीं जी हमारी बात मानी जाए। 10 लोगों की बात की बजाय दो लोग अपनी बात को प्रेफर दे के अपनी महफिल अलहदा से लगा लें, वहां कहते हैं कि इन्होंने तो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। उसके बाद अगली ज़रबुल मिसल है वो है सवाल गंदम और जवाब। जवाब अक्सर सवाल गंदम जब आता है तो बच्चे आगे से लिख देते हैं जवाब मसूर। तो जवाब मसूर सिर्फ मसूर की दाल नहीं होती, बल्कि सवाल गंदम जवाब चना। इसका इस ज़रबुल मिसल का मतलब है कि सवाल कुछ पूछा जा रहा है और जवाब जो है वो कुछ दिया जा रहा है। मसलन आपसे टीचर सवाल जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड कर रहा है, और आप आगे से जो है उनको अपने भाई की शादी की कोई स्टोरी सुनाना शुरू कर दें, तो उस पर कहा जाएगा कि ये क्या बोल रहे हो, सवाल गंदम जवाब चना। अब अगली ज़रबुल मिसल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो सर मुंडाते ही ओले पड़े। अब इसमें जो है इस ज़रबुल मिसल में मुंडवाते लफ्ज जो है ये अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। यानी कि यहाँ पर वाव लफ्ज जो है ये वाव भी आएगा और यहाँ पर आपका अलिफ भी सेपरेटली आएगा, और ये ज़रबुल मिसल सही है और ये वाली गलत है। सर मुंडवाते ही ओले पड़े का मतलब है कि अगर जैसे किसी ने नया घर बनाया है, नया घर बनाते ही सैलाब आ गया, तो उन बेचारों को एक मुसीबत, अभी बेचारों को खुश भी नहीं हुए थे कि नई मुसीबत का सामना करना पड़ गया, तो वहां पर ये बोला जाता है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। उसके बाद अगली ज़रबुल मिसल है, सो सुनार की एक लोहारों की। अब सो सुनार की, सुनार कहते हैं सोने का काम करने वाले को, और लोहारों कहते हैं लोहे का काम करने वालों को। सो सुनार की एक लोहार की, के सो सुनार सुनाएगा तो उसके एक लोहार एक ही सुनाएगा और वो सुनार के बराबर होगी। यानी कि सुनार क्योंकि सोने का काम करता है, उसके पास पैसा ज्यादा होता है, पैसे वाले लोगों की बात अक्सर लोग सुनते हैं और समझते हैं कि जी पैसे वाला है तो इसकी बात सुनना भी मजबूरी है और मानना भी मजबूरी है। लेकिन जो लोहार होता है बेचारा वो एक ही बात करता है, लेकिन एक ही बात पते की बात करता है, जबकि सुनार जो है वो 100 बातें करेगा लेकिन उनमें से शायद ही कोई बात पते की हो। तो यहाँ पर ये वाली ज़रबुल मिसल गलत है
और ये वाली सही है। ये है 100 सुनार की एक लोहार की, लोहारो लफ्ज नहीं आना। इसी तरह अगली ज़रबुल मिसल है कब्र पर पाँव मारना। अब कब्र पर पाँव मारना ज़रबुल मिसल नहीं होती, बल्कि ये है कब्र पर लात मारना। कि आप लोग जो हैं ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ टांग भी लिख देते हैं, टांग नहीं आना। यहाँ लफ्ज ही हमेशा से लात मारना लिखा हुआ है, तो उसी के ऊपर लिखेंगे कि कब्र पर लात मारना। इसी तरह आपकी ज़रबुल मिसल थी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल कहते हैं पुलिस वाले को। कि चोर जो है वो अपनी चोरी मानने की बजाय कोतवाल के ऊपर सारा इल्जाम डाल दे कि नहीं जी आप जो हैं वो गलत बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं होता। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कोतवाल लफ्ज अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। कोतवाल इस तरीके से आता है जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया। इसी तरह अगली ज़रबुल मिसल है पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फजल। अब फजल नहीं होता, नाम मोहम्मद फाजिल होता है। ये ज़रबुल मिसल गलत है और ये सही है पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। के ना पढ़े लिखे हैं और ना उन्हें बात करनी आती है, और नाम जो है माँ बाप ने रख दिया मोहम्मद फाजिल। फाजिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता। यानी जिस शख्स की शख्सियत जो है वो उसके बिल्कुल नाम के उलट हो, वहां पर ये बोला जाता है पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। अब इस तरीके से आपको ये ज़रबुल इमसाल करवाई गई हैं और बोर्ड के निसाब के मुताबिक करवाई गई हैं। इसी तरह आपकी जो बुक में ज़रबुल इमसाल हैं, वो ज़रबुल इमसाल के भी सारे लेक्चर जो हैं वो चैनल पर दे दिए गए हैं, और उसमें सारी मिस्टेक्स आपको मैंने बताई हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक आप करते हैं पेपर्स के अंदर, जिसकी वजह से आपकी ज़रबुल मिसल गलत हो जाती है। घर आके आप बहुत खुश होते हैं कि हमारी ज़रबुल मिसाल जो है वो ठीक है और 5 के 5 नंबर आएंगे, लेकिन आपकी कौन सी मेन मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपके ज़रबुल इमसाल के नंबर कटते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपकी बुक की ज़रबुल इमसाल हैं वो वाले लेक्चर हम आपको जो है चैनल पर दे चुके हैं। ये अब ज़रबुल इमसाल वो वाली दी गई हैं जो आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, लेकिन आपकी बोर्ड की बुक में मौजूद नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल ज़रबुल इमसाल हैं जो अभी हम लोगों ने आपको करवाई हैं। अगर आप ये भी एक दो लेक्चर जो हैं इन ज़रबुल इमसाल के भी पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको इंशाल्लाह बोर्ड में 5 के 5 पूरे नंबर हासिल हो जाएंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, और इसमें वो वाले बच्चे जो उर्दू में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं उनके नंबर लेने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर वो ज़रबुल इमसाल ही ध्यान से कर लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। 15 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, 5 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, 20 नंबर पूरे हो जाते हैं। और 10-15 नंबर का वो कोई और क्वेश्चन कर लें, मरकजी ख्याल या दरख्वास्त, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छे तरीके से अपना ये वाला पेपर जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो वीक हैं, जो पेपर्स के अंदर बोर्ड में पोजीशंस लेना चाह रहे हैं और बहुत अच्छे नंबर हासिल करना चाह रहे हैं, वो भी ये सारी कॉन्सेप्चुअल ज़रबुल इमसाल करें ताकि उनका कोई नंबर जो है वो पेपर में कम ना हो सके। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। बहुत जल्द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसके अलावा भी बोर्ड के मुतालिक जो भी अहम इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, वो हम साथ साथ आपके साथ अपने चैनल पे जो है वो शेयर करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।